very easily. In the previous lectures, we have discussed many things which are basic and which are important for you for solving MCQs. Many times what happens is you read anecdotics in a single day and then you go for attempting MCQ. At this point of time, there will be two theories. One will be that since you have read, you will be knowing many of the MCQs. And second is since you have read, many MCQs will be there which might not be known to you. So ultimately you think that I have read but I'm not knowing this. Why does this happen? So we make you understand this topic in basic way, in easy way. Your basic should be clear before attempting any MCQ exam because all the students who are reading Dental Pulse will be appearing for the exam. Now there will be a simple exam in which all the questions will be asked from Dental Pulse. So each and everyone will be getting 200 out of 200 questions. Now there has been none a incident that all the questions has been correct by any candidate. So this means that they are asking questions from the basic things, from newer topics, from recently advancements, from previous year papers, explanations. So the source is not clear. If the source was clear, students will get complete marks out of the total marks. So what I mean is when you are preparing, you always have the habit of going with base clearance. Okay, today we'll be discussing many things which are important regarding endodontics. In MCQ exam also regarding endodontics, very easy questions will be asked. For example, you will be asked about electric bulb test, false positive, false negative, true positive, true negative. So all these 4 points should be clear in your mind when you're attempting any MCQ exam because when a question is twisted, it will be difficult for you to understand that what was false positive, what was false negative, and ultimately you will leave that question without attempting. So in today's lecture, we will be discussing very easy topics which are repeated in exams. So when you go for MCQ preparation, first of all, you try to attempt all the questions which are known to you, which are familiar to you. In the same way, you should prepare first easy topics or easy content. Otherwise, what will happen? At the end of your preparation, you will be confused when you will be asked a simple question. Okay, what is the difference between file and rimmer? So such simple topics should be clear to you, and when you are preparing, it's a one time preparation. You will not prepare once again because we are providing you such guidance that it's a one shot academy. You have to pass your entrance exam at the first trial. Okay? So let all the students mark their presence. Afterwards we will start today's lecture. We will discuss today pulp therapies. Okay, endodontics. It means treatment related to pulp or inside the root canal. Okay, other name for endodontic treatment is root canal treatment. Now, why to do pulp therapies? You understand first. Today I am not having my writing pad, so my handwriting will be very poor due to I am writing with mouse. So why pulp therapies is needed? Okay, so answer is easy. You have to protect the pulp. Okay, or prevent pulp injury or prevent the caries from going deep to the pulp. In short, you have to protect the pulp, so you are doing pulp therapies. Okay,
So in pulp therapies, your main aim is to preserve the pulp, for you have to maintain the integrity of the pulp. Okay, if pulp therapies fail और pulp is damaged, then you have to go for pulpectomy. pulp को आपको निकाल देना है या फिर RCT कर देना है. RCT में पेशेंट ना जाए, ठीक है, RCT में पेशेंट ना जाए वो दांत, इसलिए आप पल्प थेरेपीज करोगे. ठीक है. नाउ व्हाट डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ पल्पल प्रोटेक्शन इज नीडेड. ठीक है, तो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस RDT, अभी अभी एग्जाम में नया पैटर्न आया है. वो लोग फुल लिखते ही नहीं, वो लोग लेजी हो गए, खाली आपको शॉर्ट में बताएंगे. RDT, what about RDT is true. Okay, in this way you will be confused what was RDT. You will think that it is RCT, but by mistake it is written RDT. Okay, so make sure you are being alert. Now tell me, if you are alert, what is full form of ART. In our exam this question was asked. ART was discovered or invented in which country. ART का फुल फॉर्म मुझे बताइए. जो भी लोग प्रेजेंट है ना, वो मुझे फुल फॉर्म बताएंगे. ऐसे बीच में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा ना, तभी आपको याद आएगा कि क्या करना है क्या नहीं. और जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये ऐसे ही आपकी नोट्स में डाइवर्स मल्टीपल डायरेक्शन में नोट्स बनाने पड़ेगी. फुल फॉर्म की बात है तो आपको ART का मुझे फुल फॉर्म बताना पड़ेगा, और बाद में वो कौन सी कंट्री में इन्वेंट या डिस्कवर हुआ था. बेग योर पार्डन. कमेंट करिए ART का फुल फॉर्म और ART का मतलब. इट इज रिलेटेड टू एंडोडोंटिक्स ओनली. आपके पास एरोटर नहीं होगा, ठीक है, कोई आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे फिजिबल नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वहाँ पे आपको अगर दांत की सारवार करनी है तो कैसे करोगे. या फिर आपको एरोटर से कोई डरता होगा, एरोटर का यूज़ नहीं हो सकता है, या फिर आपको पल्प को प्रिजर्व करना है, तो आप कैसे करोगे ट्रीटमेंट. किसी को नहीं पता ART का फुल फॉर्म. वेरी गुड, योर आंसर इज राइट. एट्रोमेटिक रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट. वेरी गुड. तो हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था कि कौन से कंट्री में ये इम्प्लीमेंट हुआ था या चालू हुआ था. तो आपको अगर फुल फॉर्म आ गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए. इट वॉज इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड इन टेंजानिया. ओके, ये हमारे टाइम का ये इम्पोर्टेंट MCQ था. तो इन दिस वे you will make sure that all the MCQs which are previously asked, may be asked, will be important to you. तो remaining dentin thickness, उसके हिसाब से हमको पल्प थेरेपी डिसाइड करना है. ठीक है, तो अब MCQ कैसे हो सकता है कि यहाँ पे तो लिखा है कि what decides what type of pulpal protection is needed. ओके, तो ये MCQ कैसे बन सकता है. कैविटी सीलर, लाइनर और बेस कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट. ये ऑप्शन आएगा रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस. समझे कौन सा यूज करना है. सीलर, लाइनर्स, बेस, तीनों ये सब रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट करके. कैविटी सीलर्स, ठीक है, तो अब ये बात समझिए, नाम ही देखो सीलर्स. तो डेंटेनल ट्यूब्यूल्स जो ओपन होते हैं ना, उससे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो कोई पेशेंट आया और आपको बोला कि सर मुझे तो सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि डेंटेनल ट्यूब्यूल्स आर हैविंग अ लार्ज मूवमेंट, फ्लूइड मूवमेंट इन दोज ट्यूब्यूल्स. ओके, तो वो ट्यूब्यूल्स के अंदर मूवमेंट क्यों होती है,
तो बाहर का जो इरिटेंट है, आप जो खाना खा रहे हो, वो ट्यूबल्स को अंदर फ्लूइड मूवमेंट करवा रहा है, और वहाँ से जो मूवमेंट हो रही है उससे पेशेंट को सेंसिटिविटी हो रही है। इट्स ए मैकेनिज्म ऑफ सेंसिटिविटी। ओके, तो ऐसे पेशेंट में आप क्या करोगे, डेंटेनल ट्यूबल्स को सील कर देना है, सील द डेंटेनल ट्यूबल्स। तो इसलिए कैविटी सीलर्स, मेरे हैंडराइटिंग खराब होंगे क्योंकि माउस का यूज़ मैं कर रहा हूँ आज, राइटिंग पैड नहीं मेरे पास। सीलर्स, ठीक है, तो नाम से ही देखो आपको पता होना चाहिए, सीलर डेंटल ट्यूबल्स को सील करता है, और केमिकल और बैक्टीरियल, ठीक है, वो दोनों को ही प्रिवेंट करता है। ठीक है, इरिटेशन दोनों का जो स्टिमुलाई होगा केमिकल्स या बैक्टीरिया का, वो प्रिवेंट करता है। इट इज यूजुअली यूज्ड अंडर एमालगम, ओके, इट इज नॉट यूज्ड अंडर कंपोजिट और जीआईसी। तो ऐसे आपको कोरिलेट करना है कि अगर कंपोजिट या जीआईसी करना है तो सीलर्स यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप ये सोचोगे कि इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो नोट्स में। प्रोस्थो में जब आप कैविटी प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, कैविटी नहीं, टूथ प्रिपरेशन, टूथ प्रिपरेशन करने के बाद पेशेंट बोलेगा कि सर मुझे तो बहुत सेंसिटिविटी हो रही है, तो it means the dental tubules are open, and if you leave this, patient will be very irritant, patient will be very painful, there will be tooth will be very sensitive to any stimuli. So before relieving the patient, you have to apply this cavity varnish or bonding agent on the prepared tooth, और टूथ प्रिपरेशन के बाद आपको वार्निश अप्लाई कर देना है। वार्निश या सीलर अप्लाई करोगे तो डेंटल ट्यूबल सील हो जाएगी, और बाद में आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को भेज देना है सील करके, ठीक है, तब जाके पेशेंट को इरिटेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोस्थो में भी ये आपको काम आ सकता है। एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि पेशेंट आफ्टर टूथ प्रिपरेशन फील्स इमीडिएट सेंसिटिविटी एंड ही डज नॉट वांट एनी ट्रीटमेंट फर्दर, ही वांट्स टूथ रिमूवल, ही वांट्स आरसीटी, तो व्हाट विल बी योर ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन होगा डू नथिंग, अप्लाई वार्निश एंड रिलीव द पेशेंट। ठीक है, तो आपको दूसरे ऑप्शन भी होंगे कि आप लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करके आरसीटी चालू करो, लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करके दांत निकाल दो, ऐसा भी ऑप्शंस रहेगा। बट ये ऑप्शंस आता है तब जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे भी है कि उसमें ऑप्शन रहेगा डू नथिंग। ठीक है, आपको बोलेंगे कि 8 साल का 9 साल का बच्चा है, एक दांत निकल गया, वो क्रिकेट खेलता था, फिर वो एसिडियस टूथ था, फिर वो दांत हाथ में लेकर क्लिनिक के पास डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर देखता है कि दांत तो सही है, तो फिर डॉक्टर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, रेसिडियस टूथ निकल गया है पेशेंट का, और वो डेंटिस्ट के पास जाता है 10 मिनट में ही, दांत साफ है, सॉकेट भी साफ है, तो उसको रीप्लांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट करिए, रीइम्प्लांट करना चाहिए या नहीं। कमेंट करना है आपको, रीप्लांट करोगे या नहीं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। आपको आंसर बताना पड़ेगा। 8 साल का बच्चा है, डेसिडियस टूथ जो इंसाइजर था, वो क्रिकेट खेलते खेलते
एवल्स हो गया, चला गया बाहर, पेशेंट ने तुरंत ही हाथ में लिया और डेंटिस्ट के बगल में ही था क्लिनिक। तो फिर डेंटिस्ट को दांत बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए? रीप्लांट करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, क्या करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन और भी कंटेस्टेंट या कैंडिडेट्स आंसर होगा। आपने यस लिखा है तो क्या रीप्लांट करना चाहिए या नहीं, ऐसे थोड़ी डिटेल में लिखिए। फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। ऐसा एमसीक्यू रिपीटेडली आता है और आपको केस बेस्ड सिनेरियो की जो हमने बुक थी एमसीक्यूज की, वो सारे एमसीक्यूज हमने टेस्ट सीरीज में रख दिया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो एक बात समझिए, अभी की जो थियरी है ना, वो ऐसी है कि डेसिडियस टूथ को कभी भी रीप्लांट करना नहीं चाहिए। ठीक है। चलो ये थियरी को आप मान लो, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। अभी जो लेटेस्ट जो भी पीरियोडोंटिक्स का कन्वेंशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें ये प्रूव कर दिया कि डेसिडियस टूथ को रिप्लांट नहीं करना है, क्योंकि एंकाइलोसिस हो जाता है या फिर रिजॉर्प्शन हो जाता है, वो उसका प्रोग्नोसिस पुअर आता है। ठीक है। अब ये बात तो मान ली अपने कि कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस में गए थे और ये बात पीरियोडोंटिक्स के एसोसिएशन ने बोल दिया है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी समझो कि अगर 8 साल होता है, ठीक है, तो जो टीथ होता है नीचे का इंसाइजर वन, ठीक है, ए एवल्स्ट हो गया है। ए मतलब कौन सा टूथ? रेसिडियस सेंट्रल इंसाइजर। तो ए एवल्स्ट हो गया है और वन उसके नजदीक ही है, मतलब ऑन द वे ऑफ इरप्शन, बिकॉज एट द एज ऑफ 8.5 years, most commonly 99% upper central incisors और lower central incisors have erupted। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि टाइम इज नियर द स्टेज ऑफ इरप्शन ऑफ द टीथ। सो इन दिस वे वी विल नॉट गो फॉर दिस रीइम्प्लांटेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये आपको सीखने को मिला कि डेसिडियस टूथ को रिप्लांट नहीं करना है, और दूसरा लॉजिक ये मिला कि इट वाज नियर द टाइम ऑफ शेडिंग द अपर डेसिडियस सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, ये आपको याद ध्यान में रखना है। ठीक है, दो लॉजिक आपको याद रखना है। ठीक है। कैविटी लाइनर्स, वार्निश का समझ लिया आपने, बॉन्डिंग एजेंट का समझ लिया। ठीक है। अभी प्राइवेट में ये यूज़ करते हैं बार बार, और 100-200 रुपये ले लेते हैं खाली बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करके। ठीक है, ताकि पेशेंट की सेंसिटिविटी कम हो जाए। अब कैविटी लाइनर्स, व्हाट दे विल डू, दे विल गो विथ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, जो यहाँ पे सीलर थे वो खाली क्या करते थे, केमिकल्स को प्रिवेंट करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे केमिकल। यहाँ बैक्टीरिया को ही करते हैं प्रिवेंट, और कभी कभार उनके पास एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फ्लोराइड रिलीज जो भी करता है ना, वो एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी हम रखते हैं, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लाइनर का थोड़ा एडवांटेज ये हुआ कि वो बैक्टीरिया को तो प्रिवेंट करेगा ही करेगा, और थेरापेटिक इफेक्ट भी देगा वो। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे केविटी बेस, अगर रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस बहुत ही कम है, ठीक है, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, डेंटिन अच्छा है, डेंटिन की थिकनेस ज़्यादा है दांत के अंदर। ठीक है, तो ये आएगा सीलर। फिर थोड़ा कम है तो कैविटी लाइनर्स आएगा, और रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस बहुत ही कम है, डेंटिन थोड़ा ही है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको अच्छा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ऐसा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि वो थर्मल, ठीक है, हम जो भी गर्म चीज़ खाते हैं, ठंडी चीज़ खाते हैं, कोई भी स्टिमुलाई होता है हीट के या कोल्ड का, ठीक है, तो थर्मल प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देंगे,
और जो डेंटिन चला गया है उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, और डेंटिन के अंदर जो भी अंडरकट्स है उसको भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। कभी कभार हम कैविटी बनाते हैं, ठीक है, तो कैविटी आपने देखी होगी ऐसे बन जाती है, ये टूथ है, तो यहाँ पे अंडरकट जैसा बन जाता है ये कोने में, ठीक है। तो बेस से क्या होगा, वो अंडरकट भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रखिए, उसकी थिकनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेंटिन की थिकनेस कम है, ठीक है। तो डेंटिन को रिप्लेस भी उसको करना पड़ेगा, जितना डेंटिन खो गया है उतना, और वो बेस सारे प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, थर्मल भी देगा, मैकेनिकल भी देगा, केमिकल तो देगा ही देगा, ठीक है, और मैकेनिकल और बैक्टीरिया को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है दो ही चीज़, क्योंकि ये लोग ऐसा मान रहे हैं कि जिसका काम है वही काम करेगा, ठीक है। तो आइडियली अगर आपको बेस देना है और देखा कि आपको इरिटेशन भी नहीं करना है तो आप सीलर भी या लाइनर भी आप दे सकते हो, ठीक है। पहले आप लाइनर अप्लाई कर दो ताकि बैक्टीरिया को जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है डेंटिन का वो आ जाता है, एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है वो भी आ जाती है, और उसके ऊपर आप बेस दे दो, ताकि बेस देने का फायदा क्या है, मैकेनिक थर्मल और मैकेनिकल प्रोटेक्शन तो होगा ही होगा, और लाइनर से नीचे डेंटिन इंड्यूस होगा, डेंटिन बनेगा, एक बेस से डेंटिन बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तीनों चीज़ों में अलग अलग रोल दिया हुआ है, डेंटिन का इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होगा वो लाइनर में होगा। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू पूछा जाए और ऐसा लिखा है कि आपको डेंटिन का फॉर्मेशन करना है, डेंटिन को इंड्यूस करना है, तब जाके आपको कैविटी लाइनर आंसर आएगा, ठीक है। और आपको अगर चाहिए कि थर्मल और मैकेनिकल प्रोटेक्शन दोनों चाहिए तो बेस आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है और आपको नोट्स में एक क्लियरली लिख देना है। ये तो रेडीमेड नोट्स है ही, आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो और ये आपको रिवीजन में बहुत काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं, डाउट हो तो बताना, हम वापस फिर से वही डाउट सॉल्व करवा देंगे। पल्प कैपिंग, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि आप ट्रीटमेंट करते टाइम पल्प के नज़दीक हो या फिर पल्प एक्सपोज हो गया है, तो दो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तब आपको पल्प कैपिंग करना पड़ेगा। तो पल्प कैपिंग कैसे करोगे और कैसे करना है उसके हिसाब से आपको आगे ट्रीटमेंट पता चलेगा, ठीक है। तो पल्प कैपिंग यू विल डू व्हेन यू हैव टू प्रोटेक्ट द पल्प, ठीक है। तो दो चीज़ होती है, एक्सपोजर होगा तब या फिर आपको उसके नज़दीक है, ठीक है। और वो आपको पल्प कैपिंग क्यों करना है, प्रोटेक्ट द पल्प, ठीक है, पल्प की जो वाइटलिटी है उसको मेंटेन करना है और आगे जाके आरसीटी को अवॉइड करना है, पल्प कैपिंग का ये एम या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आप ये देख लो यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा, वार्निश, ठीक है, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट कब होता है कब नहीं होता है, ये आपको रेडीमेड यहाँ पे नोट्स में मिल गया है। एमलगम होगा तो शैलो कैविटी अगर होगी ना तो आपको क्या करना है, वार्निश और डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, शैलो कैविटी मतलब आरडीटी ज़्यादा है, रिमेनिंग डेंटिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस ज़्यादा है। मॉडरेटली डीप कैविटी मतलब थोड़ा कम है वो, तो आपको एक बेस भी देना पड़ेगा,
ठीक है। एमलगम यूज़ करते हो तो, कंपोजिट करते हो तो डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट। जीएससी में तो ये आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, मुझे बताएगा कोई? जीएससी में क्यों हम यूज़ नहीं करते लाइनर और बेस? और अगर यूज़ करना है तो खाली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ कर सकते हैं। जीएससी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है ना, इसलिए। कमेंट करके बताइए जीएससी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हम यहाँ पे अगर डीप होगा तो खाली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर कास्ट गोल्ड इनलेन ओनली, ठीक है। ये तो हम करते ही नहीं, लेकिन ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। शेलो कैविटी है तो ल्यूटिंग सीमेंट, डीप है तो बेस आएगा, ठीक है। डीप में देख लो याद, और ज़्यादा डीप होगा तो तीनों आएगा, लाइनर, बेस, ठीक है, दोनों आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वापस हम आते हैं पल्प कैपिंग पर, ठीक है। पल्प कैपिंग हम करते हैं जब एक्सपोजर हो जाता है या पल्प के नज़दीक होता है, ठीक है। दो चीज़ों में होता है। नाउ पल्प कैपिंग इज contraindicated. When it is contraindicated, it is contraindicated when it will have extensive restoration, ठीक है, या फिर पैथोलॉजिकल एक्सपोजर। पैथोलॉजिकल एक्सपोजर का मतलब क्या है? पल्प के अंदर कोई और पैथोलॉजी है, ठीक है, कोई और पैथोलॉजी के हिसाब से पल्प का एक्सपोजर हो गया है, ठीक है। आप पल्प पॉलिप देख लो, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है। पेरिएपिकल ग्रेनुलोमा हो गया है तो वो भी पैथोलॉजिकल है, ठीक है। तो कोई भी बड़ी पैथोलॉजी एसोसिएट होगी, देन यू विल नॉट गो फॉर पल्प कैपिंग। नाउ मैकेनिकल एक्सपोजर कब होता है पल्प का? ठीक है, एक्सीडेंटल, जब आप टूथ प्रिपरेशन करते हो तब ये होता है, ठीक है। तो एक मैकेनिकल एक्सपोजर एक ये होता है कि टूथ प्रिपरेशन के टाइम या कैविटी बनाते के टाइम ये हो जाता है, ठीक है, पल्प का एक्सपोजर। और कभी कभार कैरीज जो होता है वो ही डेंटिन को इरोड कर देता है, डैमेज कर देता है, और पल्प के नज़दीक बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, ठीक है। नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ पल्प कैपिंग, ठीक है। पल्प कैपिंग हर एक पेशेंट में इंडिकेशन नहीं होता है। कब कर सकते हो? तो पहले तो यू शुड नो दैट अ टूथ शुड बी एसिम्प्टोमेटिक। तो कभी कभार आप देखोगे रेडियोग्राफ में यहाँ पे एब्सेस है पेरिएपिकल रीजन में, तो उसमें आपको पल्प कैपिंग नहीं करना है, ठीक है। पेशेंट बोलेगा मुझे पेन नहीं, लेकिन आप देखोगे रेडियोग्राफ में तो एब्सेस है, पेरिएपिकल डिसऑर्डर्स है, या पेशेंट इज हैविंग सिम्टम ऑफ नाइट पेन, ऑल दिस इंडिकेट दैट इट इज अ केस ऑफ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। अभी थोड़ा इजी हो गया है, ठीक है। आपने पढ़ा था जब पल्प के लीजन्स के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में, तो नाइट पेन जब आता है तो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है, ठीक है। ऐसे लिंक आपको कर देना है। फिर पल्प कैपिंग हम कम कर सकते हैं। तो चलो मानो कि आपने ट्रीटमेंट के टाइम पल्प को एक्सपोज कर दिया, पल्प एक्सपोजर हो गया, और तब जाके जो ब्लीडिंग होता है ना वो फ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ब्लीडिंग फ्रेश रेड होना चाहिए, ठीक है, रेड कलर का ब्लड होना चाहिए। और जो ब्लड निकल रहा है, ठीक है, जो हेमरेज हो रहा है, वो आराम से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तब जाके आपको ये पल्प कैपिंग करना है, ठीक है। अगर वो हेमरेज कंट्रोल नहीं कर पाते आप, बहुत सारे मेजर्स है, स्ट्रिप्टिक्स है, हेमोस्टेटिक्स है, उससे आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तब आप
पल्प कैपिंग नहीं कर सकते हो, तब आपको आगे की ट्रीटमेंट पल्पेक्टोमी या रूट कैनल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आता है पल्प इज नॉट इन्फ्लेम्ड। ठीक है। पल्प में कोई रिवर्सिबल की साइन नहीं होती है, तो आगे का कोई लीजन होगा ही नहीं। तो उसका मतलब ये है कि पल्प में कोई भी साइन नहीं होनी चाहिए रिवर्सिबल पल्पाइटिस की। ठीक है। रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया, उसका मतलब ये है कि पल्प का डैमेज चालू हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पल्प फ्रेश और नॉर्मल होना चाहिए। नो पेरिएपिकल पैथोलॉजी। ठीक है। नीचे के रीजन में रेडियोग्राफिक या कोई क्लिनिकल पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, रेडियोलेशंस नहीं होनी चाहिए, और टेंडर टू परकशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दो टाइप्स के पल्प कैपिंग है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, हम फिर से वो टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो देख रहे हो ना, वो आपको वाइवा में भी, वो जीपीएससी में इंटरव्यू में भी आपको आएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। पल्प कैपिंग का तो इजी क्वेश्चन है, आपको तो पता होना ही चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है। अब देख लो, इनडायरेक्ट में क्या होता है, पल्प एक्सपोजर हुआ नहीं होता है, उसके नज़दीक होता है। ठीक है। डेंटिन थोड़ा होता है पल्प के ऊपर, लेकिन डेंटिस्ट को पता चलता है कि इट इज टू नियर द पल्प। ठीक है। यहाँ पे नियर है, बट नॉट एक्सपोज्ड। और यहाँ पे एक्सपोज हो गया है। ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। तो अगर नियर होता है, it is near the pulp, some part of dentin is present over the pulp, and the dentist wants to preserve the pulp integrity or pulp vitality. What they will give indirect pulp capping. Okay। indirect pulp capping के अंदर बहुत सारे एजेंट्स आते हैं, लेडर मिक्स सीमेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, ग्लास आइनमर सीमेंट। बट अभी तक हमने जो भी यूज़ किया होता है हमारे बीडीएस में या कॉलेज में, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया होता है। ठीक है। डाइकल हम उसको मिक्स करते हैं, हार्ड सेटिंग जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हम उस पर प्लेस कर देते हैं, तो वो हार्ड सेटिंग हो जाता है। और ऐसी थियरी भी है कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से डेंटिन जनरेशन होगा, डेंटिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट चॉइस। और अभी भी रिसेंटली लेडर मिक्स सीमेंट भी आया है। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कौन कौन से है, तो आपको लेडर मिक्स सीमेंट बोलना है। ठीक है। डायरेक्ट पल्प कैपिंग। तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग में आप क्या करोगे, आपने एरोटर के टाइम जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको पता चला कि एक्सपोजर हो गया है। एक्सपोजर तुरंत ही होता है और ब्लड उसमें से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चालू होता है। जब ब्लड आ जाता है उसका मतलब ये हुआ कि ये तो प्रॉब्लम हो गया, एक्सपोजर हो गया है पल्प का। तो आपको पैनिक नहीं होना है। ये फ्रेश एक्सपोजर जो होता है वो कोई दिक्कत नहीं, आपको वो कंट्रोल कर देना है। और अगर वो कंट्रोल हो जाता है तो फिर आपको डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर देना है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब मुझे ये बताइए, लेडर मिक्स सीमेंट में कौन कौन से कंपोजिशन आते हैं। ये एमसीक्यू पूछा गया है रिसेंटली, जो एआईपीजी पेपर होते हैं, ऑल इंडिया नीट एमडीएस और एम्स, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है लेडर मिक्स सीमेंट का कंपोजिशन, कौन कौन से चीज़ उसमें होता है। ठीक है। कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
लेडर मिक्स पेस्ट का कंपोजिशन, ठीक है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेडर मिक्स पेस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यू हैव टू कमेंट, और जो भी कमेंट करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। लेडर मिक्स पेस्ट या लेडर मिक्स सीमेंट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट? ये तो आना ही चाहिए, बीडीएस में आपने भले ही ना किया होगा लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आना ही चाहिए, बहुत ही इजी है। प्लीज कमेंट। जो भी लोग देख रहे हैं उनको कमेंट तो करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कमेंट करिए कि सर वी डोंट नो, तो जाके हम इंटरेक्टिव लेक्चर्स कर सकते हैं, हम बता सकते हैं आंसर आपको। लेटर मिक्स पेस्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, और ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने पल्स में से पढ़ते हो तो भी ये क्वेश्चन आता है, हमने पिछला लेक्चर 3 या 4 दिन पहले लिया था, तो ये टाइम में तो शायद आधा इंट्रोडक्स पूरा हो जाना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट लेटर मिक्स पेस्ट, उसमें क्या कंटेंट आएगा। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेटर मिक्स पेस्ट जो होता है ना, उसमें ये लोगों ने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रख दिया, ठीक है, डेमेक्लोसाइक्लिन, याद रखना, एक एंटीबायोटिक रख दिया डेमेक्लोसाइक्लिन, ठीक है, और एक स्टीरॉयड रख दिया, एक एंटीबायोटिक रख दिया। कौन सा वाला? डेमेक्लोसाइक्लिन। और दूसरा एक स्टीरॉयड रखा है जो हमारा फेमस डेंटिस्ट्री में एक ही इंपॉर्टेंट आता है, ट्राइएम्सिनोलोन एसीटोनाइड, ठीक है, एक एंटीबायोटिक डेमेक्लोसाइक्लिन वाला और एक स्टीरॉयड, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा है? ट्राइएम्सिनोलोन एसीटोनाइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और अभी जब भी मैं लेक्चर लूंगा ना तब ये क्वेश्चन तो मैं आपको पूछूंगा ही कि लेडर मिक्स पेस्ट में क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई डाउट हो या कोई आपको मुश्किल हो तो मुझे बोलना है। तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग वी विल गो
when the exposure is less than 0.5 centimeter. Remember this dimension. When you are going with perfection, or when you are answering any content in interview also, you should be perfect that pinpoint exposure, pinpoint बोलना चाहिए, less than 0.5 centimeter, fresh red colored blood should be there, hemorrhage should be controlled, कम से कम कंटामिनेशन होना चाहिए, आप रबर डैम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था रबर डैम वॉज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, अब तो आना चाहिए, वो किस विच साइंटिस्ट gave this rubber dam, or rubber dam was used for the first time by which scientist? Rubber dam was given by which scientist? Very good, nice. आरसी नहीं था वो, शायद एससी था, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मेरे बुक में एससी था वो, ठीक है, एससी बर्नम, नाइस आंसर। आरसी नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एससी आरसी सब कुल मिलाकर एक्सपो हमको एमसीक्यू में देखना है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है एससी था, ठीक है। आपने कहा आरसी बनने में पड़ा, कोई बात नहीं, ऐसे एग्जाम में आपको आते रहेंगे क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पल्प कैपिंग में आप लेडेड मिक्स सीमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि दे वांट डेंटिन टू जनरेट ओवर द एक्सपोज्ड पल्प, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ भी आपको डेंटिन रीजनरेट करना होगा, डेंटिन का फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेंटिस्ट्री में थोड़े इजी और रूटीनली यूज्ड इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों सीमेंट है ना वो सॉल्युबल है, ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी के कारण वो डिज़ोल्व ना हो जाए फ्लूइड से, इंट्राओरल कोई कंजप्शन होता है उससे, तो उस पर आपको बेस लगा देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई कर देते हैं, उसके ऊपर जीआईसी फिल कर देते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं कि आप 21 दिन के बाद आना, वी विल डिटरमाइन द dentin formation with the help of a radiograph, and based on patient symptoms we will decide to move forward or to go for RCT or pulpectomy. Okay, now some important thing, calcium hydroxide is the gold standard for pulp capping. Okay, it is the gold, it is the only used material or best material, but it has पुअर बॉन्डिंग टू डेंटिन, ठीक है, डेंटिन के उसके साथ पुअर बॉन्डिंग है, मटेरियल रिजॉर्प्शन भी होता है, और मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एडवांटेजेस भी है कि वो डेंटिन बनाता है, और डिसएडवांटेजेस ये भी है कि उसका पुअर बॉन्डिंग है,
रिजॉर्प्शन भी हो जाता है और मैकेनिकली वो इनस्टेबल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कभी कभार वो अवॉइड करने के लिए, ये उसके ड्रॉबैक्स को निकालने के लिए नया मटेरियल आया है बायोडेंटिन। ठीक है, बायोडेंटिन, उससे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जैसा ही रोल वो अप्लाई करेगा और ड्रॉबैक्स नहीं है उसके। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिप्लेसमेंट क्या आया, बायोडेंटिन। ठीक है, और बायोडेंटिन अभी मोस्ट कॉमनली यूज्ड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में, पल्पोटोमी में, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन और एपेक्सिफिकेशन। ठीक है, एपेक्सिफिकेशन और एपेक्सोजेनेसिस। ठीक है, वो एपेक्सोजेनेसिस वाइटल टूथ में होता है, ये नॉन वाइटल टूथ में होता है। इसका मेन एम ये है कि जब आप आरसीटी करोगे तो एपेक्स वाइड ओपन होगा। ठीक है, तो उसमें आपको एपेकल सील मिलेगा नहीं। जो बोलते हो ना आपकी एपेकल सील कंप्लीट होना चाहिए, टक बैक होना चाहिए, वो ओपन एपेक्स के केस में होगा नहीं। तो आप क्या करोगे उसमें आरसीटी करनी हो तो अगर ओपन एपेक्स है और आरसीटी करना है तो एपेक्स को पहले बंद करना पड़ेगा। टूथ अगर नॉन वाइटल है तो एपेक्सिफिकेशन करोगे, वहाँ पे आपको एमटीए या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई कर देना है। और अगर वाइटल है तो आपको एपेक्सोजेनेसिस करना है। उसमें आप मटेरियल अप्लाई करोगे एपेक्स के रीजन पर, तो वहाँ पे फिजियोलॉजिक डेंटिन बनेगा, रूट बनेगा फिजियोलॉजिकली, एपेक्स का क्लोजर होगा और बाद में आप आरसीटी का टक बैक या एपेकल सील ऑब्टेन करके आरसीटी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है डायरेक्ट पल्प कैपिंग और इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी हमने थोड़ी मिनट में समझा दिया एपेक्सोजेनेसिस और एपेक्सिफिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका एक एमसीक्यू तो होता ही होता है। ठीक है, एक इसका एमसीक्यू होता है। तो आज के लेक्चर में आपने 2 एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको डे बाय डे यू विल ग्रेजुअली इंक्रीज योर नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑल्टरनेटिव है बायोडेंटिन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पल्पोटॉमी में पल्पोटॉमी, टॉमी मतलब रिमूवल, लेकिन कंप्लीट नहीं। ठीक है, पल्प को आप निकाल दोगे। तो यहाँ पे ये लोग ने कुछ नया जुगाड़ किया कि आपको कोरोनल पल्प निकाल देना है। ठीक है, पल्प के अंदर थोड़ी इंजरी हो गई थी, डैमेज हो गया था, तो आप रूट वाला जो पल्प होगा उसको वहाँ के वहाँ रख दोगे और खाली कोरोनल पल्प को निकाल निकाल दोगे। उसको हम आधा हाफ आरसीटी भी बोलते हैं। आरसीटी में क्या करते हैं, दोनों निकाल देते हैं, रूट का पल्प, क्राउन का पल्प, दोनों को हम निकाल देते हैं और यहाँ पे खाली कोरोनल पल्प निकालेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसका कारण क्या है, कोरोनल पल्प निकाल कर हम टूथ को वाइटलिटी भी प्रिजर्व कर सकते हैं, रूट का जो रिजॉर्प्शन होता है वो नेचुरल होगा नीचे से, ये सब उसके एडवांटेजेस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ वी कम टू एंडोडोंटिक रेडियोग्राफी। ठीक है, रेडियोग्राफी का क्वेश्चन जो आता है ना, वो सब क्वेश्चंस वो सब सब्जेक्ट में आएगा। पेरियोडोंटिक्स में रेडियोग्राफी का इम्पोर्टेंस, प्रोस्टोडोंटिक्स में रेडियोग्राफी का इम्पोर्टेंस। सो ऑल दिस विल टेस्ट योर नॉलेज कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो एंडोडोंटिक रेडियोग्राफी में आपको तो पता ही है कि जब आप आरसीटी करते हो तो आप आईओपीए लेते हो, आरवीजी लेते हो, तो उसका एक फीचर है। फिर आरसीटी के टाइम
कहाँ तक आपकी फाइल गई, कहाँ तक ऑब्जर्वेशन करना है, पेरिपेकल में कितना बॉन रिजॉर्प्शन हील हुआ, वो सब आपको देखने के लिए भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट के बाद आपने सही किया नहीं किया, कोई पैथोलॉजी हुई, उसका भी रीज़न आपको पता चलेगा रेडियोग्राफ से। ठीक है, ये सब उसके फीचर्स है। रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है, ये आपको तो ओरल मेडिसिन में पता ही होगा। एक एंगल बाइसेक्टिंग टेक्निक है, देख लो नीचे यहाँ पे ये फिल्म रखा है और यहाँ पे टूथ का एक सेंट्रल एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस, उसके बीच में से एक लाइन में जाना है, उसके पैरेलल आपको रेडिएशन लगाना है। ठीक है, वो होगा बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक। ठीक है, कौन सा एंगल, ये फिल्म का एंगल, ये टूथ का एंगल, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी, वहाँ पे आपको रेडिएशन जाने देना है। तो ये कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, मैं तो ये समझ रहा हूँ, लिखने वाले लिख देते हैं, बोलने वाले बोल भी देते हैं, इससे तो अच्छा ये है। ठीक है, पैरेलल टेक्निक, अब क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा उसके पैरेलल रखोगे और सीधा उसमें रेडिएशन जाने दोगे। ठीक है, तो पैरेलल टेक्निक मोस्ट एक्यूरेट है, थोड़ा मैग्निफिकेशन करती है 10%। ठीक है, वो आपको थोड़ा याद रखना है। अगर आपको मॉडिफाइड पैरेलल टेक्निक यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, 10% को मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा मॉडिफाइड पैरेलल टेक्निक यूज़ करोगे तो। और वो कैसे करोगे, वर्टिकल एंगुलेशन होगा ना, उसको 15 डिग्री से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तब जाके आपका इमेज शॉर्टन हो जाएगा। तो ये जितनी भी टेक्निक है वो खाली थियरेटिकल काम आती है, प्रैक्टिकल तो आती नहीं है, लेकिन थोड़ा मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडिफाइड पैरेलल टेक्निक में क्या होता है, तो वर्टिकल एंगुलेशन इंक्रीज करते हैं लोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आता है पैरेलल के लिए, ये यहाँ पे पैरेलल रह जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर से आपको बीम को जाने देना है। अब बहुत सारे फील्ड मोल्डर्स भी होते हैं, ठीक है, बाइट लोग भी होते हैं, आपके क्लिनिक कैसा एडवांस्ड है उसके हिसाब से ये हो सकता है। अब फिल्म की साइज, अलग अलग फिल्म की साइज आती है, 1 to 4। 1 में आता है नैरो आर्चेस एंड एंटीरियर टीथ, 4 का होता है ऑक्लूजल व्यूज, और पेरिएपिकल के लिए स्टैंडर्ड 2। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, ये सब। ठीक है, ये थोड़ा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम OMRD आएगा तब एक्सरे पर हम थोड़ा PhD कर देंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे पोजिशनिंग करती है, बुल स्लो क्या होता है, यहाँ भी वही समझाया है। Periapical lesions are always smaller on radiographs. Why? Because radiographs are 2D image. ठीक है, तो उसमें पेरिएपिकल रेडियोग्राफ या लीजन्स का डायमेंशन एग्जैक्ट हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, फिर ट्यूब शिफ्ट टेक्निक्स, अगर आपको अच्छे एक्सरे लेने हैं तो आपको थोड़ा ट्यूब शिफ्टिंग भी करना पड़ेगा। उसका एक एग्जांपल है सेम लिंगुअल ऑपोजिट बक्कल। ठीक है, उसका सिंपल लॉजिक ये है कि जिस साइड से आप एंगुलेशन रखोगे उस साइड लिंगुअल रूट या लिंगुअल कैनाल दिखेगी। ठीक है, आपने अगर मीजल एंगुलेशन रखा तो मीजली जो दिखेगा आपको वो होगा लिंगुअल रूट या लिंगुअल कैनाल। ठीक है, अगर आपके जो लोअर 6 होता है उसमें कौन कौन से कैनाल्स होते हैं, लोअर 6 में कौन कौन से कैनल होते हैं,
मिजियोबक्कल, मिजियोलिंगुअल और डिस्टल। ठीक है, तो उस हिसाब से जो एंगुलेशन होगा उसमें ये लिंगुअल कैनाल दिखेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन में ऑपोजिट वाला दिखेगा। तो ऐसे आपको लॉजिक थोड़ा याद रख लेना है। नाउ वी कम टू एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ये नोट्स हम आपको देने वाले हैं, तो थोड़ा याद रख लेना है कि ग्रुप 1 में क्या आता है, ग्रुप 2 में क्या आता है। ठीक है, ग्रुप 1 जो होते हैं ना वो खाली हाथ से यूज़ कर सकते हो, हैंड वाले। ग्रुप 2 में क्या आता है कि आप हैंड पीस को आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, और तीसरे में क्या है, लेच टाइप इंजन ड्रिवन ड्रिल्स और रिमर्स आएंगे उसमें। ठीक है, और फोर में आरसी पॉइंट्स। ठीक है, गट्टा पर्चा आएगा, सिल्वर पॉइंट्स आएगा, पेपर पॉइंट्स आएगा, वो सब कैटेगरी फोर में आएगा। ठीक है, फिर आता है हैंड इंस्ट्रूमेंट्स। 10 नंबर से चालू होकर 100 नंबर तक जाता है। ठीक है, तो जो भी नंबर का इंस्ट्रूमेंट होगा ना वो क्या करेगा, उसका 1/100 मिलीमीटर का टिप वो डिसिग्नेट करेगा। ठीक है, आप मान लो कि 30 नंबर का फाइल है। ठीक है, तो उसका टिप होगा ना वो 0.30 mm का होगा। ठीक है, ऐसा उनको कोडिंग दिया है, ऐसा उसको नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप टिप से चालू होकर करोगे, आप जितना बढ़ोगे उतना क्या होगा, 0.02 का टेपर बढ़ेगा। ठीक है, ये 2 डिग्री का फाइल है इसलिए। फिर 4% भी आता है, 6% भी आता है। तो 4% में क्या होगा, हर बार 0.04 मिलीमीटर बढ़ेगा। 6 में क्या होगा, 0.06 मिलीमीटर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 2% टेपरिंग का फाइल है, ये आपको याद रखना है। और आइडियली जो 16 होते हैं ना, 16 मिलीमीटर, वो उसका वर्किंग लेंथ एरिया है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोगे ना आप तो 16 मिलीमीटर का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो हर एक मिलीमीटर पर 0.02 बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 0.32 बढ़ेगा। टिप से चालू करोगे, यहाँ टिप है, और 16 मिलीमीटर का जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग लेंथ। ठीक है, वहाँ तक आपको क्या होगा, वर्किंग ब्लेड वहाँ उतना टेपर बढ़ जाएगा, 0.32। ये बात कर रहे हैं हम एंड इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, याद रखना। अभी जो 4% है, 6% है, वो रोटरी में आते हैं। ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट्स की ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा रखना भी पड़ेगा आपको। टिप का एंगल जो होगा ना वो 75% ±15 होगा। अलग अलग लेंथ्स में आते हैं, 21, 25, 28 और 31। ठीक है, और हैंड इंस्ट्रूमेंट जो होगा ना वो नीचे आप देख रहे हो कलर कोडिंग होता है। तो हमने जब आरसीटी सीखी, खुद मैंने, तब इसके हिसाब से ही सीखी हुई थी। ठीक है, अभी तो प्रोटे पर बहुत सारी चीज़ आ गई है, डेंस प्ले की फाइल्स आ गई, शेप मेमोरी वाली फाइल्स आ गई। ठीक है, लेकिन ये हैंड इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा लॉजिक यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से 100 तक। ठीक है, अब पल्प को रिमूवल के लिए, पल्प को अगर निकालना है, आपने एक्सेस ओपनिंग कर दिया और पल्प को निकालना है तो क्या करोगे, बाब्स। ठीक है, बाब्ड ब्रशेस आएगा वो। माउस है इसलिए हैंडराइटिंग खराब है भाई।
और उससे भी छोटे छोटे बाब्स होते हैं रास्प में, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पल्प रिमूवल के लिए क्या क्या यूज होता है, तो ब्रशेस और रास्प, ठीक है। अब क्लीनिंग और शेपिंग के लिए तो यहाँ पे रिमर्स भी है, के फाइल भी है और एच फाइल भी है। तीनों का डिफरेंस हम समझाएंगे। आपको अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे समझाइए, कुछ बताइए, तो हम आगे डाउट का सॉल्विंग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। क्लीनिंग एंड शेपिंग, ठीक है, ये दूसरा हमारा स्टेप है, बीएमपी। पहले हमने एक्सेस ओपन कर दिया, अब बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन में क्लीनिंग एंड शेपिंग आएगा। तो रिमर्स, उसमें क्या होगा, आपको 1/4 और 1/10 उतना ही आपको घुमाना है, फिर आपको निकाल देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, साइड में जो होगा वॉल वो सब शेव होगा, ठीक है, पूरा नहीं घुमाना है। 1/4 टू 1/2 मतलब हाफ टर्न आपको करना है, फिर आपको विड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसमें कम फ्लूट्स होते हैं, ठीक है। फ्लूट्स मतलब दो जो वर्किंग एरिया होते हैं ऐसे गोल गोल गोल, वो फ्लूट्स बोलते हैं। फ्लूट्स उसमें कम होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी कटिंग एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा होती है, रिमर्स की कटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, फ्लूट्स कम है इसलिए, और अच्छी तरह से डेब्रिस रिमूव कर सकता है। अब ये समझो कि फ्लूट्स ज़्यादा है, कटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ब्रेक होने के चांस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ कि वो भले ही अच्छी तरह से दांत को साफ करता है अंदर से, ठीक है, कटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है, डेब्रिस को अच्छा रिमूव करता है, लेकिन उसके फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। अभी रिमर्स ही समझा रहा हूँ, सही है। तो रिमर्स जो होंगे, ठीक है, उसमें आपको यही याद रखना है कि कटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, ब्रेक होने के चांस ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्लूट्स कम है, ठीक है, और वो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन से बनता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये जब हमने पढ़ा था तो ये भी आया था, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन से वो बनता है। चार चीज़ आपको याद रखनी है। पांचवी क्या है, 1/4 टू हाफ टन, वही आपको मूवमेंट उसमें करनी है, ठीक है। अब आता है के फाइल, ठीक है। तो के फाइल में क्या होगा, आपको प्रेशर में वॉल जो होता कैनल वॉल, उसमें आपको अप्लाई प्रेशर करना है, फिर यू हैव टू विड्रॉ द फाइल वाइल मेंटेनिंग द प्रेशर। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपको फाइल को कैनल के अंदर रोटेट करना है, फिर आपको लगा कि चलो अब एंगेज हो गया है, फिर आपको ऊपर पुल करना है, ठीक है, विड्रॉ करना है। तो उससे कैनल की वॉल्स होगी वो ठीक से शेव होगी, ठीक है। अब वो कैसे बनता है, तो वो स्क्वायर ब्लैंक से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमर्स और फाइल का डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। कहाँ समझाऊँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखना है ब्लैंक, ये तो पल्स के एक्सप्रेशन में भी है, मैंने थोड़ा रट लिया है इसलिए याद है। यहाँ पे ट्रायंगुलर ब्लैंक, यहाँ पे स्क्वायर ब्लैंक, फिर फाइल्स या फ्लूट, नंबर ऑफ फ्लूट्स, ठीक है, यहाँ पे लेस, यहाँ पे मोर, फिर कटिंग एफिशिएंसी। मैं ऐसे नोट्स बनाता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतने लिखने का। 6 महीने में मैंने डेंटिस्ट्री का कोर्स पूरा किया हुआ है। कटिंग एफिशिएंसी यहाँ इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, और फ्रैक्चर होने के चांस उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है,
ठीक है। फिर आपको मोशन कैसे यूज करना है, तो 1/2 टू 1/4 टर्न, ठीक है। इसमें आपको रोटेट करना है, अंदर एंगेज कर देना है। रोटेट आप आधा भी कर सकते हो और हाफ भी कर सकते हो, इसमें कोई वो लिमिट नहीं है। और इसको पुल करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे आपको नोट्स बनानी है आपके एग्जाम में। माफी चाहते हैं, हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है आज। तो अब यही यहाँ पे समझाया है, ठीक है। स्क्वायर जो होता है उससे फाइल बन जाती है के फाइल, ठीक है। और एच फाइल, उसमें आपको क्या करना है, अप्लाई करना है प्रेशर कैनल वॉल के अगेंस्ट में, विड्रॉ करना है, ठीक है। उसका जो फ्लूट्स होगा वो कैसे करेंगे, वो इन्वर्टेड क्रिसमस ट्री होता है ना, देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ऐसा बन जाता है। ऊपर ऊपर जाओगे तो क्रिसमस ट्री जैसा उल्टा लगेगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए। इसको उल्टा करोगे आप तो क्रिसमस ट्री हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी अच्छी ये है कि जब ये आप फाइल विड्रॉ करोगे, गोल गोल घुमाओगे, रोटेट करोगे, तब ये कट नहीं करेगा। खाली ऊपर का मोशन दोगे विड्रॉ करने का, तभी जाके वो कट करेगा, तभी जाके वो वॉल को शेप करेगा, ठीक है। तो उसकी कटिंग एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए वो ब्रेक हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है, ठीक है। वो आपको याद रखना है, एच फाइल, के फाइल और रिमर्स, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। और इसको एच फाइल का मतलब क्या है, एच स्ट्रॉन्ग फाइल्स। के फाइल का मतलब के में क्या आएगा, कमेंट करिए के में क्या आएगा। प्लीज कमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के इन के फाइल। Please tell me what is K in K5. तो ऐसे आपको डिफरेंस में याद रखना है। के फाइल का नाम बता दीजिए के क्या है। अब लेंटिलो स्पाइरल, ठीक है, इट इज यूज टू कैरी सीलर इनटू द कैनाल्स बिफोर going with final obturation. You have to apply sealer onto the canal walls, and lentil spiral will give this objective or fulfill this objective. पीजो रिमर, ठीक है, वो क्या होता है, ये आपको तब यूज करना है कि जब आपने आरसीटी कर ली और कैनाल फिल कर दी गड्ढा पर्चा से। तो अगर पोस्ट एंड कोर आपको करना होगा ना, तो आपको यहाँ तक ही आपको रखना है गड्ढा पर्चा, और जो ऊपर की वॉल खाली होगी वो सब गड्ढा पर्चा निकालना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट एंड कोर के टाइम पोस्ट की जगह बनाने के लिए आपको पीजो रिमर यूज़ करना पड़ेगा। पीजो रिमर क्या करेगा, आपने जो आरसीटी कर दी तो गड्ढा पर्चा कंप्लीटली कैनाल में फिल कर दिया, ठीक है। तो पोस्ट की जगह तो बनानी पड़ेगी ना, गट्टा पर्चा को निकालना पड़ेगा। तो फॉर क्रिएटिंग स्पेस ऑफ द पोस्ट यू हैव टू रिमूव गट्टा पर्चा, एंड दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ पीजो रिमर। लेकिन पीजो रिमर का डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभार वो कैनाल को परफोरेट भी कर सकता है, ठीक है। नाउ वी कम टू गेट्स ग्लिडन, ठीक है। तो गेट्स ग्लिडन जो होता है ना, वो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपको जो कॉर्नल फ्लेयरिंग करना होता है कैनल का, ठीक है, उसमें आपको हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ गट्टा पर्चा, प्रिपेयरिंग स्पेस फॉर द पोस्ट। तो आप ये समझिए पीजो रिमर और गेट्स ग्लिडन ड्रिल वो दोनों पोस्ट एंड कोर में तो काम आएंगे ही आएंगे,
लेकिन कभी कभार पोस्ट एंड कोर नहीं करना है आपको, आपका जो एक्सेस ओपनिंग है सेंटर कैनाइन का सिंगुलम एरिया है वहाँ पे आपको थोड़ा कॉर्नल ओपनिंग वाइड करना है, ठीक है, आरसीटी का एक्सेस ओपनिंग थोड़ा वाइड करना है तो भी ये यूज़ होता है, गेट्स ग्लिड एंड ड्रिल, ठीक है। कैनाइल जो कैनाइन होगा उसका सिंगुलम में आपको अगर एक्सेस ओपनिंग करना है वाइड तो दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ठीक है। उसका शेप है फ्लेम शेप्ड, कटिंग पॉइंट है लैच टाइप और इट इज अटैच टू ए स्लो स्पीड हैंड्स एंड पीस, ठीक है। वो 6 में आते हैं। हमने जब प्रोस्टोडोंटिस्ट वो एमडीएस किया होगा तब ये हमने रखा हुआ था पोस्ट एंड कोर करने के लिए। अब आता है निकेल टाइटेनियम इंस्ट्रूमेंट्स, द मार्वेलस इन्वेंशन दैट चेंज द path of endodontics. It's a revolutionary invention because nowadays no dentist is going with RCT without night type files or ProTaper files. उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी होती है शेप मेमोरी, कोरोजन रेजिस्टेंस, इलास्टिसिटी और रेजिलियंस, उसके हिसाब से ये एलोइस का यूज़ हुआ प्रोटेपर फाइल्स में, ठीक है। वो बैंड भी हो सकती है और ब्रेक भी नहीं होता है, तो ये प्रॉपर्टीज के कारण ये नाइट टाइप फाइल्स यूज होता है। स्प्रेडर्स, स्प्रेडर्स हम कब यूज करते हैं, जब लेटरल कॉम्पैक्शन टेक्निक यूज करते हैं ना ऑब्चुरेशन में, लेटरल कंडेंसेशन, तब आपको गट्टा पर्चा इंसर्ट करना है कैनाल के अंदर। उसके लिए फिर आपको देखना है कि आजू बाजू जगह है एसेसरी गट्टा पर्चा के लिए, हाँ तो वो कैसे डिसाइड करोगे, आपको स्प्रेडर्स अंदर डालने हैं और you have to create the accessory canals, accessory gutta percha space by use of spreaders. This will lateral condense the already placed master cone and this will create the space for the upcoming gutta percha. So in this way lateral condensation is there or performed. Pluggers, what will they do? They are they are having diameter wider than the spreaders and they are having blunt end to plug, to block the opening, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम एंडोडोंटिक प्रोसीजर अगले लेक्चर में। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए वरना हम लेक्चर एंड कर देंगे। ये जो आपको अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो यू कैन डिस्कस। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन आता है तो भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। इस लेक्चर के साइड में जो भी एमसीक्यूज है वो आपको सॉल्व करना है, थोड़े इंपॉर्टेंट है। So it's time for telling you bye bye. Have a nice time. Good night, guys.